Good morning, everybody. Welcome to Lossico's Daily News Analysis. And today is 6 June 2020. The topics that we'll be covering for today are right time to shift pharma gears. Here we'll talk about how pharmaceutical industry can be reformed and what reforms can be brought in it. What is Atmanirbhar Bharat? So our Prime Minister has recently in his speeches given a lot of reference to Atmanirbhar Bharat, and we will talk about what he probably means by it. So the first article for today, Pharmaceutical and Health Impact Fund. तो ये तो हम सब एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, पूरा ग्लोब एक्सपीरियंस कर रहा है कोविड-19, this whole pandemic situation that we are living under the shadow of. एंड रिसर्च चल रही है मेडिसिन पे, काफी देश अलग अलग अपनी अपनी कैपेसिटी में इसकी कोविड-19 की मेडिसिन लाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं. कई जगहों पे क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे हैं. However, there's no concrete medicine that has come out yet. अब इसी पूरे context में the author talks about pharmaceutical marketing industry and how institutional reforms are needed in this industry. So essentially he talks about it through something called a health impact fund. Now health impact fund क्या होता है और किस तरह से काम करेगा, क्या सजेस्ट किया है ऑथर ने, इसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे. उससे पहले लेट्स डिस्कस हाउ करेंटली अभी आजकल के करंट सिनेरियो में हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इनफैक्ट द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की फंक्शनिंग होती कैसे है, एंड हाउ इट प्रोड्यूसेस द मेडिसिन्स एंड हाउ इट मार्केट्स द मेडिसिन्स, और क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं. Medicines, if we talk about medicines per se, they are one of the greatest achievements of human beings. काफी हद तक एक कॉस्ट जो आती है ह्यूमैनिटी को, वो मेडिसिन की वजह से रिड्यूस हो गई है. चाहे वो ह्यूमन लाइफ की कॉस्ट हो, सिक डेज की कॉस्ट हो, लॉन्जिविटी बढ़ गई है, लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, जो हेल्थ डिटीरियोरेट होती है वो मेडिसिन की वजह से इंप्रूव हो रही है. Everything happened because our pharmaceutical industry evolved over a period of time. Now, even though there's a big pharmaceutical industry, and it's said the data suggests that global pharmaceutical market is around rupees 110 lakh crore annually. It produces this much of money, and it's a huge market. It has certain inadequacies and it faces certain problems that we need to discuss about. तो प्राइसिंग की बात करते हैं कि एक्चुअली में फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां बनती हैं बाजार में, कंपनीज जो इनोवेट करती हैं ये दवाइयां, इनकी प्राइसिंग कैसे होती है. तो से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ए, रिसर्च चल रही है वहां पे किसी रीसेंट डिजीज की. नाउ द कंपनी रिसर्चेस ऑन द डिजीज and then develops a medicine. Once the company develops the medicine, वो उस medicine को patent कराते हैं. ये आपने अपनी intellectual property law में पढ़ा हुआ होगा, since all of you are preparing for judiciary. Let's assume that you know basics. In fact, everybody knows basics of what a patent is. जब भी कोई नई चीज को invent किया जाता है, scientific innovations, उनको patent किया जाता है, so that only the innovator can take the benefits that are arising out of sale of such particular innovation. These medicines are then patented, और ये जो कंपनी है जिसने इस मेडिसिन को इन्वेंट किया, उसके पास पैसे आते हैं उस मेडिसिन के सेल के. So this is how largely how these companies, innovators, they earn money on the sale of medicine. अब प्रॉब्लम आती है जब इन मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ा दी जाती है. तो बेसिकली अगर कॉस्ट उस मेडिसिन की प्रोडक्शन की से 100 रुपीज है, since the company has now patented the medicine, it has a monopoly over it, and now it can even sell the medicine at rupees 500. That is, बीच का जो 400 rupees है, that can go as a profit to the company, and it has a patent over it, so nobody else can manufacture the same medicine using the same technology. एक बहुत लैंडमार्क केस था 2013 में, नोवार्टिस जजमेंट भी बोला जाता है उसे. इट वाज अबाउट अ कैंसर मेडिसिन
Novartis claimed patent over that cancer medicine, and our Supreme Court said that even generic drug manufacturers have the right to manufacture it. तो इस जजमेंट की डिटेल्स तो यहाँ पे इट्स नॉट रेलेवेंट, बट बेसिकली द पॉइंट इज द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट नोवार्टिस की जो कैंसर ड्रग थी उसका पेटेंट खत्म हो गया है, एंड नाउ द जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स कैन प्रोड्यूस दैट मेडिसिन. उसके जो इम्पैक्ट था दैट वाज ह्यूज बिकॉज इट वाज अ कैंसर मेडिसिन, एंड जब तक जेनेरिक जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स थे उस कैंसर मेडिसिन को नहीं बना पा रहे थे, तब तक उस ड्रग की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा थी. तो अब आप ये कंपेयर करिए दैट व्हेन दैट पर्टिकुलर मेडिसिन इज पेटेंटेड एंड ओनली वन कंपनी, इन दैट केस नोवार्टिस, कुड प्रोड्यूस दैट मेडिसिन, उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि कैंसर के पेशेंट्स उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे. इस जजमेंट के आने के बाद कई और कंपनियों ने उस दवाई को बनाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी कॉस्ट अब कम हो गई है, अफोर्डेबल हो गई है. So this is the main issue that arises with respect to our pharmaceutical industry. अब उसको कैटेगराइज अगर किया जाए तो तीन मेन प्रॉब्लम आती हैं. पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि सारी इंडस्ट्रीज प्रॉफिट मोटिव से चलती हैं, जस्ट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, इवन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्क्स ऑन अ प्रॉफिट मोटिव. अब ये प्रॉफिट मोटिव इस तरह से रोल प्ले करता है कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, वो इग्नोर हो जाता है. Because there are certain diseases that happens only in the poor section. Say for example, malaria, tuberculosis, इस type की जो diseases हैं, the affluent section of the society, they are able to protect themselves from such diseases. लेकिन poor sections probably they cannot. अब the companies which are pharmaceutical companies which are profit focused, they will not make medicines for the poor sections. बिकॉज उनकी मेडिसिन अगर वो पुअर सेक्शन के लिए मेडिसिन बनाएंगे, उनको उनकी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, और कॉस्ट कम होने का मतलब यह भी होता है कि उन कंपनीज का प्रॉफिट कम हो जाएगा. सो दे मेक दोज मेडिसिन विच आर फोकस्ड एट द रिचर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी सारी मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, they are running towards manufacturing medicines for the diseases that are suffered by the rich or affluent section of the society and not the poor section of the society. WHO, World Health Organization के हिसाब से neglected tropical diseases affect over 1 billion people but attracts only 0.35% of the total industry research and development. अब ये देखिए कितना बड़ा डेटा सामने आया है कि 1 बिलियन लोग ट्रॉपिकल डिजीजेस से अफेक्ट होते हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्री का, वो बहुत ही कम प्रोपोर्शन उस पर फोकस करता है. So this is the problem which comes with profit motive in pharmaceutical industry. The second problem is markup. So what is markup? अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, markup is the price at which the medicine is sold above the cost price. तो किसी मेडिसिन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल, सबका मिला के कॉस्ट अगर 100 रुपीज आता है, and the company wants to earn profit, since it has the patent over such medicine, it can even sell it at rupees 500. तो बीच का जो 400 रुपए का गैप है, इसको हम मार्कअप बोलते हैं. कॉस्ट प्राइस से ऊपर का मार्कअप, इट कैन रेज द मार्कअप, एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 400. अब अगेन प्रॉफिट मेकिंग मोटिव के वजह से व्हाट दीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज डू इज दे रेज देयर मार्कअप्स, और इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है दवाई का. इट बिकम्स अनअफोर्डेबल टू द पुअर पीपल, एंड ओनली सो दैट दीज बिग इंडस्ट्रीज कैन अर्न प्रॉफिट. देन एक और बड़ा जो इशू है इस अभी करंट सिस्टम के साथ, इट इज रिलेटेड टू थेराप्यूटिक वैल्यू. सो एट सम इंस्टेंसेस व्हाट हैपेंस इज कि दवाई का एक्चुअल जो इफेक्ट है, जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है, दैट माइट नॉट बी वेरी हाई, लेकिन वो दवाई इसलिए बिकती है क्योंकि मार्केटिंग उस दवाई की बहुत ज्यादा हो जाती है. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, बट इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग अ डिजीज. लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट तब भी होता रहता है क्योंकि प्रॉफिट तो मिल ही रहा है मार्केटिंग की वजह से.
अब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इससे सोसाइटी के जो एलिमेंट्स हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, rather it only functions to give profit to the pharmaceutical industry. तो ऑथर सेज कि इस पूरे जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, एंड देन टू डील विद दिस ही सजेस्ट समथिंग कॉल्ड अ हेल्थ इम्पैक्ट फंड. नाउ व्हाट इज अ हेल्थ इम्पैक्ट फंड? हेल्थ इम्पैक्ट फंड बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव रूट है फार्मा इनोवेटर्स के लिए. तो ये लोग जो दवाई मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड किया है ऑथर ने हेल्थ इम्पैक्ट फंड के जरिए. ही सेज कि ये ऐसे चलेगा कि नई जो मेडिसिन आती है उनका रजिस्ट्रेशन एक हेल्थ इम्पैक्ट फंड के अंदर किया जा सकता है, और इस फंड के अंदर जो मेडिसिन रजिस्टर होंगी उनको अपनी कॉस्ट प्राइस के नीचे दवाइयां बेचनी होंगी. एंड सो दिस अगर कॉस्ट प्राइस के नीचे वो कंपनीज अपनी दवाइयां बेचेंगी, दिस ऑटोमेटिकली सॉल्व्स अ प्रॉब्लम जो हम पहले सफर करते थे, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग ऑफ द कंपनी. ऑल्सो जिन लोग के लिए अनअफोर्डेबल मेडिसिन हो जाती है उनके लिए अफोर्डेबल हो जाएगी. अब कंपनीज का इसमें क्या फायदा होगा? वो यह है कि हर साल उनको 10 एनुअल रिवॉर्ड पेमेंट्स मिलेंगे बेस्ड ऑन हेल्थ गेन्स. तो ये क्लियर सा फंडा है जिसमें आउटकम पे बेसिस पे कंपनीज को रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे. बेसिकली उनको प्रॉफिट मिलेगा दवाइयों के आउटकम की बेसिस पे. एंड दिस इज व्हाट एन एफिशिएंट सिस्टम लुक्स लाइक, वेयर यू गेट व्हाट यू लीव. एसेंशियली जब जितना आप बेनिफिट प्रोवाइड करोगे, जितने हेल्थ गेन्स होंगे, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा. एक एस्टिमेट लगाया है ऑथर ने. ही सेज दैट इसमें जो रजिस्टर्ड होंगे प्रोडक्ट्स उनको लगभग ₹70,000 to 20,000 crores मिलेगा ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ईयर, depending on the value that the product creates in the market. Now अब इसमें हेल्थ इम्पैक्ट फंड, सिंस ये जो फंडिंग है ये गवर्नमेंट के थ्रू आएगी, इट्स नॉट कमिंग थ्रू द डायरेक्ट कंज्यूमर्स ऑफ दिस मेडिसिन. इसकी फंडिंग सोर्सेस को जानना जरूरी है. तो ऑथर ने ये बोला है कि जो गवर्नमेंट्स है वो फंड कर सकती हैं इस हेल्थ इम्पैक्ट फंड को. दे कैन वॉलंटरीली प्रोवाइड फंड्स. ही सेज दैट इंटरनेशनल टैक्स कैन आल्सो फंड दीज हेल्थ इम्पैक्ट फंड्स. अब कई प्रकार के इंटरनेशनल टैक्सेस होते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस टैक्स. अगर आपने देखा हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आजकल सजेस्टिंग समथिंग कॉल्ड ग्रीन हाउस टैक्स. स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस पे भी टैक्स लगते हैं. So all these transactions and government funds can ultimately help improve and make a fund for health impact fund. And he says that if countries do not contribute, we can also culminate a system where the country which does not contribute, उसको benefit ही नहीं मिलेगा ये medicine के reduced price का. तो मेडिसिन के रिड्यूस्ड प्राइस का बेनिफिट लेने के लिए कंट्रीज विल ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ इम्पैक्ट फंड. इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स काफी होंगे. सिंपली सेइंग, पहला बेनिफिट तो यही होगा कि मेडिसिन विल बिकम अफोर्डेबल टू अ वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल हु कुड नॉट अर्लियर अफोर्ड इट. फर्दर कंपनीज के पास खाली यह मोटिव नहीं रह जाएगा कि उन्हें प्रॉफिट बनाना है तो उन्हें रिच सेक्शन के लिए ही दवाइयां बनानी है. Rather they will have this satisfaction that they will get funding from this health impact fund. Therefore R&D जो है वो expand हो जाएगा and it will expand to the areas so that it benefits the poor section of the society as well. And the author also says that now the earlier the focus was कि एक effective product आए जो कि high sales achieve कर सके. लेकिन इस हेल्थ इम्पैक्ट फंड के आने के बाद जो फोकस होगा, जो एम होगा, गोल होगा, वो यह होगा कि एक इफेक्टिव प्रोडक्ट आए जो कि ओवरऑल डिजीज के बर्डन को कम कर सके. एंड दैट इज व्हाट दैट वी आर लुकिंग टुवर्ड्स बाय समथिंग कॉल्ड दिस हेल्थ इम्पैक्ट फंड. सो लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट फंड होल्ड्स एंड व्हाट इट होल्ड्स फॉर अस. Since pharmaceutical industry has come into highlight with the coming of this pandemic, and we need to be really careful and look forward to it. The second article for today is what is Atmanirbhar Bharat. So recently
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 स्पीचेस दी हैं, जिनमें उन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक पैकेजेस की बात की, काफ़ी चीज़ों की बात की, बट हियर वी विल टॉक अबाउट व्हाट ही मेंट बाय आत्मनिर्भर भारत. So this term called Atmanirbhar Bharat, this has been referred repeatedly, and ये काफ़ी important है that we know what is meant by Atmanirbhar Bharat according to our government. So आत्मनिर्भर, इसको सेल्फ रिलायंस भी बोल सकते हैं हम, अपने आप पे डिपेंड करना. This doesn't necessarily means isolation. So being self-reliant, according to the author, does not mean isolation from the entire globe. That is not what our government is hinting towards. Rather, प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बोला है कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स में पार्टिसिपेट करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, which means that it's not isolation from the from other countries. Rather, कुछ elements है जो एक आत्मनिर्भर भारत में बनाने में important होंगे. These elements are like resilience, and then we need to leverage our internal strengths. हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, and everybody in India needs to take personal responsibility with respect to their well-being, with respect to the well-being of their industries, economy, etc. So there are certain examples that have been given to show what is meant by Atmanirbhar Bharat. Recently ही डिसीजन आए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे अनाउंस किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया का, उसे लिबरलाइज किया जाएगा. Now what is meant by liberalization of agriculture sector is, so agriculture sector basically there are 2 acts which used to govern agriculture sector since long, and these acts are Essential Commodities Act and APMC Act, जिसे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट भी बोलते हैं. स्टेट्स रोल प्ले करते हैं इन एक्ट में. Now these 2 acts were the main acts which govern the agriculture sector. अभी तक जो रूल थे इन एक्ट्स के अंदर, they were that the government and the officers of the government will have the power to decide कि farmers ultimately अपना प्रोड्यूस कहाँ बेचे. तो होता क्या था, there used to be मंडीज, और फार्मर्स वही उन मंडीज में जाके ट्रेडर्स को अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और जो भी कुछ और वो प्रोड्यूस करते हैं, वो उन मंडीज में जाके ट्रेडर्स को बेच सकते थे. So this limited the scope for a farmer to sell the produce. Now certain amendments have been made, and APMC में भी amendment अभी बहुत ही recently हुआ है, which suggests कि farmers now have freedom to sell their produce even outside those mandis. So अब farmers mandis के बाहर जाके अपना produce बेच सकते हैं. They have the scope, they have the freedom to not just rely on the mandis, to not just sell their produce to those traders. Rather, farmers अब individually industries को contact कर सकते हैं. There can be individual agreements, and therefore farmer के पास काफी autonomy आ गई है to make the decision with respect to its whole transaction. और इससे basically essentially ये हुआ है कि farmer के पास एक localized decision making की power आ गई है. Now this is directly connected to Atmanirbhar Bharat. How? Because now the farmer is self-sufficient and self-reliant. It can make localized decisions for itself. It doesn't need to depend on decisions of the government officers or any other agency for its produce. Other examples of an Atmanirbhar Bharat would be that non-strategic जो public sector enterprises हैं, उनको privatize कर दिया जा रहा है, उनको privatize करने का plan बन रहा है. Further, space में private investment का भी decision लिया गया है. तो अभी तक जो space industry है, industry भी नहीं कहूँगी मैं उसे, जो space sector है वो government चलाता था. But now, for example, ISRO was a space organization, is a space organization, but उसको government चलाती है, हमारा देश की सरकार चलाती है. But now even private investment have been opened to the space sector. Now अगर individual कोई startup है जो अपनी मिसाइल या रॉकेट स्पेस में भेजना चाहता है, it can,
and this is again an element of being आत्मनिर्भर. कॉर्पोरेट लॉज को डिक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, इवन लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल भी बनाया जा रहा है. So all these reforms suggest that we are moving towards an Atmanirbhar Bharat, and it's related to internal governance of our country and not necessarily to the fact कि हमें बाहर से connect cut करना है. The author also says कि administrative और legal reforms भी यही hint करते हैं कि हम एक आत्मनिर्भर देश बन रहे हैं. recent economic surveys में काफी बार यही आर्ग्यू किया गया है कि जुडिशियल सिस्टम है उसमें डिलेज और इनएफिशिएंसी एक बहुत ही बड़ा कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का देश में. एंड अगर हम ये इनएफिशिएंसीज और डिले खत्म कर लें, then it will be beneficial for the economic system of the country as well. In fact, PM Modi ने यह भी कहा है that law is one of the pillars of his vision. So again, this hints towards administrative and legal reforms, and these legal reforms will lead a way towards Atmanirbhar Bharat. So all these elements suggest that we need to be self-reliant, and our ideas of what self-reliance या Atmanirbharta constitutes should be molded in such a way that is the vision of India by our government. That's all for today. The question is, what is the essential element of India's post-COVID vision? वैश्वीकरण, that is globalization, आत्मनिर्भर, that is self-reliant, उदारीकरण, liberalization, या फिर समाजवाद, socialism. Take your time and answer. Thank you.